Hello students, this is Varsha Singh from Achievers Academy. Welcome back to our English class. So class 9, as you know, today we are going to start with our new chapter, that is chapter number 5, The Happy Prince. It is from your book Moment. Right, in our another book Beehive, also we have completed one unit, and the next unit is My Childhood, which we are gonna cover after this. So before starting this whole chapter, I will give you a brief introduction about it. So what this chapter is actually about. So this chapter, The Happy Prince, is about, it is a story of a prince. Okay, so when the prince was alive, he was very happy, but when he got dead, a big statue of his was erected. Okay, and the statue could see the entire city from there, and even he can see all the miseries, all the sadness, all the worst things that have been happening in his city, right? So he saw the poor people, the homeless, their hunger, starvation, and etc etc, and all these things created a lots of kind of sadness to him, due to which he started to give away his that important or the precious sapphires, the rubies, the stones, or the golds. And how he helped those poor people throughout the story with the help of a bird named Swallow. So, this whole story is about a prince and the bird Swallow who helped him in all the things. Okay, so let's move with this chapter, right? So here it is mentioned, high above the city on a tall column stood the statue of the happy prince. He was glittered all over with thin leaves of fine golds. For eyes he had two bright sapphires and a large red ruby glowed on his sword belt. तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि सिटी के सबसे टॉप मोस्ट रीजन पे एक टॉल कॉलम बनाया गया, एक पेडिस्टल बनाया गया, और उसके ऊपर एक हैप्पी प्रिंस का स्टैचू बनाया गया है. वो हैप्पी प्रिंस बहुत सुंदर लग रहा है. इट एक्चुअली इज़ लुकिंग हैप्पी बिकॉज वो बहुत अच्छे से गोल्ड लीफ से पूरी बॉडी उसकी बनी हुई है. उसके जो दो आईज़ हैं वो प्रीशियस स्टोन सफायर से बने हुए हैं, एंड उसकी जो सॉर्ड है उसमें रेड रूबीज़ हैं. ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो उसको बहुत ज़्यादा सुंदर बना रही हैं. ओके, Later on, one night there flew over the city a little swallow. So एक दिन की बात है कि एक रात को वहाँ पे एक swallow उड़ते उड़ते आती है. ठीक है, and his friend had gone away to Egypt 6 weeks before. अब क्योंकि वहाँ ठंडी पड़ रही होती है तो उसके फ्रेंड्स सब उड़ के कहाँ चले गए होते हैं, इजिप्ट चले गए होते हैं. और फाइनली swallow ने भी डिसाइड किया होता है कि वो भी इजिप्ट जा रहा है. All day long he flew, and night he came arrived at the city. Where shall I put up? He said. I hope the town has made preparations. So वो बोलते हैं कि अब मैं कहाँ रहूँ. वो ये सोचता है क्योंकि रात हो गई है, पूरा जो टाउन है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है. ठीक है, और अब उसे कहीं तो रुकना पड़ेगा, तो वो कहाँ रुके वो ये सोच रहा है. ठीक है, एंड वो चीज़ को ढूंढते ढूंढते वो डिसाइड करता है कि वो आज की रात यहीं पे रुकने वाला है. ऑब्वियसली द बर्ड डजंट मीन व्हाट इट इज सेइंग. वी कैन से दैट प्रोबेबली द बर्ड इज बीइंग ह्यूमरस. Now, when this tiny bird saw this huge statue of Happy Prince, it thought of staying there night. So ऐसे घूमते घूमते वो जब आती है तो वो एक टॉल कॉलम स्टैचू के पास आती है. तो जब वो ये हैप्पी प्रिंस का स्टैचू देखती है उसे लगता है कि वो यहाँ पे आराम कर सकते हैं. हैव अ गोल्डन बेडरूम ही सेड. यहाँ पे उसने ऐसा बोला है कि वो उसे एक गोल्डन बेडरूम मिल गया है. तो गोल्डन बेडरूम का मतलब है यहाँ पे वो पेडिस्टल और हैप्पी प्रिंस के दो फीट जहाँ पे उसके बीच में उसने डिसाइड किया होता है स्टे करने का, वहाँ उसे बहुत ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर फील होता है. एंड दिस दैट होल बेस एंड द सराउंडिंग वॉज ऑलरेडी मेड बाई गोल्ड, सो इसलिए उसने उसे गोल्डन बेडरूम कंसिडर किया है. So here, prepared to go to sleep, but just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. What a curious thing, he cried. There's not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. So now what happened next is कि जब स्वेलो वहाँ पे बैठा हुआ था तो उसने जैसे ही उसने डिसाइड किया कि अब वो सोने जा रहा है, एंड वो अपने विंग्स को स्प्रेड करके खुद को उससे कवर कर रहा था, तभी उसने ये चीज़ नोटिस की कि ऊपर से कुछ ड्रॉप्स गिरे पानी के. तो उसने झांक के देखा तो बाहर आसमान तो बिल्कुल साफ था, बादल थे नहीं, तो ये बूंदें आ कहाँ से रही हैं. एंड तभी दूसरा ड्रॉप भी गिर जाता है. तो
उसे गुस्सा आ जाता है, वो फ्रस्ट्रेट होके बोलता है क्या फ़ायदा ऐसे स्टैचू का जो मुझे बचा नहीं सकता, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं कोई चिमनी पॉट ढूंढूंगा और वहाँ रहूँगा, ये तो मुझे लाइक हेल्प नहीं कर रहा, प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है. But before he had opened his wings, a third drop fell and looked up and saw. What did he see? So, जैसे ही वो डिसाइड करता है कि अब तो वो जा ही रहा है, तब तक तीसरी ड्रॉप भी गिर जाती है. और जब वो ऊपर मुड़ के देखता है, तो ऊपर उठा के जब अपना सर देखता है, तो वो देखता है कि क्लाउड्स नहीं, ये हैप्पी प्रिंस के टीयर्स हैं. एंड उसके चीक से टीयर्स बहुत सारे रोल डाउन हो रहे हैं और ऐसे करके गिर रहे हैं. उसके टीयर्स गोल्डन लग रहे हैं क्योंकि उसके चीक्स गोल्ड से बने हुए हैं. तो वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो वहाँ पे शाइन कर रहे हैं एक बबल्स की तरह. तो उसे ऐसा, और वो मूनलाइट में इतने अच्छे दिख रहे होते हैं कि वो एक्चुअली में गोल्ड लग रहा होता है. सो देन जो स्वेलो है वो उससे पूछ लेते हैं तुम कौन हो. तो वो भी अपना इंट्रोडक्शन दे देता है कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ. तो वो बोलते ठीक है, बट तुम क्यों रो रहे हो, तुमने मुझे पूरा भिगो दिया है रो रो के. When I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were for. I lived in the palace where sorrows is not allowed to enter. My courtiers called me the happy prince, and happy indeed I was so. सो वो उन्हें अपनी फिर सारी प्रॉब्लम बताते हैं, पूरी स्टोरी नरेट करते हैं कि जब मैं एक जिंदा इंसान था, मेरे पास भी एक दिल हुआ करता था, तब लोगों ने यहाँ पे मेरे स्टैचू बनाए थे और उन्होंने मुझे हैप्पी प्रिंस का नाम दिया था. वो हैप्पी प्रिंस का नाम इसलिए दिया था क्योंकि मैंने कभी प्रॉब्लम्स देखी ही नहीं थी लाइफ में. सैडनेस क्या होती है मैंने फील ही नहीं की थी. सिर्फ एक ही चीज़ मैंने लाइफ में फील की थी, दैट इज़ द हैप्पीनेस. एंड इसके लिए मुझे कभी इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था. एंड इसी तरीके से मैं जितने दिन मैं ज़िंदा रहा उतने दिन भी मैं बहुत हैप्पीली रहा और मैं अपने एंड मोमेंट्स पे भी बहुत ज़्यादा हैप्पी था. बट अब जबकि मैं मर चुका हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो यहाँ से इस ऊंचाई से मैं सारी प्रॉब्लम्स अपने कंट्रीज़ की देख सकता हूँ. मैं अपने किंगडम में लोगों की ये जो प्रॉब्लम्स है वो देख सकता हूँ. पहले मुझे वो चीज़ें नहीं दिखती थी, पहले मुझे सिर्फ खुशियाँ ही दिखती थी अपने आसपास. बट अब पता चलता है कि नहीं, प्रॉब्लम्स भी हैं एंड पीपल आर सफरिंग फ्रॉम अ लॉट. What is he not solid gold, said the swallow to himself. अब swallow को डाउट होता है, बोलते ये क्या है, अभी तो था कि ये तो एक नॉन लिविंग थिंग है, ये पूरा गोल्ड का है. नाउ ही इज़ वीपिंग, ही हैज़ अ हार्ट एंड एवरीथिंग. तो ये सारी चीज़ें उसे डाउट लगती है कि ये खोखला तो नहीं है, मतलब ऊपर ऊपर से गोल्ड है, अंदर अंदर ऐसे. तो वो रिमार्क्स देना चाहती है बट वो नहीं देते. उसे ऐसा लगता है कि मे बी ये राइट सिचुएशन नहीं है बिकॉज ही इज़ वेरी मच अपसेट, तो उसे कुछ नहीं बोलना चाहिए. Far away, continued the statue in a low musical voice. Far away in a little street, there a poor house. One of the windows is open, and through it can see a woman seated at a table. Her face is within and worn, and she has coarse red hands all picked up by the needle, for she is a seamstress. So वो यहाँ पे बताते हैं क्योंकि वो बीच में रुके होते हैं, तो फिर से कंटिन्यू करते हैं कि मैं कौन कौन सी प्रॉब्लम्स देख सकता हूँ. वो एक एक प्रॉब्लम्स को नरेट करते हैं. तो बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने नोटिस किया है कि यहाँ दूर से एक घर है जहाँ पे एक एकदम छोटा सा घर है जिसमें एक लेडी है जो कि टेबल पे बैठ के अपने बहुत पतली सी है और वो अपनी टेबल पे बैठ के काम कर रही है, सिलाई का फ्लावर्स लगा रही है एक सैटिन गाउन में, क्योंकि जो कि क्वीन का गाउन है और वो आज के फंक्शन में कोट बॉल में उसे पहनने वाली है. वहीं उसकी बेडरूम के कोने में उसका जो बेटा है वो बीमार पड़ा हुआ है एंड उसको फीवर है एंड वो अपनी मदर से ऑरेंजेस मांग रहा है, बट उसकी मम्मी के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है एक्सेप्ट द रिवर वाटर, और इसलिए वो रोए जा रहा है. तो नाउ हैप्पी प्रिंस उसे एक रिक्वेस्ट करता है दैट swallow swallow little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? My feet are fastened to the pedestal, I cannot move. तो जो प्रिंस है वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि swallow swallow little swallow, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? मेरे स्वॉर्ड में, मतलब मेरे तलवार में जो एक रूबी लगा हुआ है जो कि एक प्रीशियस स्टोन है, वैल्यूएबल है, उसको यहाँ से पिक करो एंड उसे जाके दे दो. ठीक है, मैं नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पैर पेडिस्टल से जुड़े हुए हैं. सो आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, सेड द swallow. My friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flower. Soon they will go to sleep. सो पर स्वेलो ऑब्जेक्ट करती है. स्वेलो बोलते हैं कि मेरे को तो जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे फ्रेंड्स कब का चले गए इजिप्ट एंड वो अभी नाइल रिवर के पास बड़े से लोटस फ्लावर्स के साथ बातें कर रहे हैं, पर मैं यहाँ पे हूँ, मुझे भी जाना है. नहीं, वो लोग सो जाएंगे, उससे पहले मुझे वहाँ पहुँचना है.
सो प्रिंस उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आज एक दिन के लिए रुक जाओ, एक रात के लिए बस मेरी मैसेंजर बन जाओ। वो लड़का बहुत प्यासा है एंड उसकी मदर बहुत ज़्यादा सैड है। तो वो बोलती है तो मैं क्या करूँ, आई डोंट थिंक आई लाइक द बॉय, मेरे को तो इजिप्ट जाना है। But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry, and it was very cold here, he said, but he agreed to stay with him one night and be his messenger. वो बोलती है कि यहाँ पे बहुत ठंडी है, मुझे रहना नहीं है, बट स्टिल वो डिसाइड करती है कि ठीक है, मैं एक दिन के लिए तुम्हारा मैसेंजर बन जाऊंगी एंड तुम्हें हेल्प कर दूंगी। Thank you, little swallow, said the prince. The swallow picked up the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beaks over the roofs of the town. He passed by the cathedral tower where the white marble angels dancing a beautiful girl came up the balcony with her lover. So जब यहाँ पे जो हमारी लिटिल स्वेलो है वो फ्लाई करते करते वहाँ पे पहुँच रही है, तो जब वो वहाँ पे जाती है तो वो पूरे सिटी को देखते हुए जाती है। वो देखती है कि जो सिटी है वो बहुत ज़्यादा लाइक हैप्पी है, कुछ प्रिपरेशंस चल रही हैं टाउन में फंक्शंस की। एक ब्यूटीफुल गर्ल है, वो बालकनी में अपने लवर के साथ खड़ी है एंड वो भी कुछ बोल रही है जो कि सुना स्वेलो ने। उसने ये कहा कि आज मेरा जो कोट बॉल रूम में जाने से पहले आई होप मेरा ड्रेस अच्छे से स्टिच होके आ जाए, बिकॉज जिस स्ट्रीम्स ड्रेसेस को सिलाई करने वाली को मैंने दिया है वो बहुत ज़्यादा लेज़ी है, बहुत धीरे धीरे करती है काम। एंड फिर वो रिवर्स के ऊपर से गुजरती है, वहाँ पे लैंटर्न्स देख रही होती है टंगे हुए हैं, और इस तरीके से घूमते घूमते वो फाइनली उस हट के ऊपर पहुँच जाती है। वहाँ वो जाती है तो देखती है वो लेडी ही स्टिल अपने काम में बिजी है एंड जो उसका बॉय है वो वहाँ अकेले लेटा हुआ है। सो वो वहाँ टेबल पे रूबी लैंड करती है एंड उसके बाद घूम के पूरे रूम में अपने विंग्स फ्लैप करती है, जिससे उस बॉय को थोड़ी सी लाइक हवा मिलती है एंड ही स्टार्टेड टू फील बेटर। एंड फिर स्वेलो उड़ के वापस आ जाती है। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड। सो वो उसका काम करके आ जाती है हैप्पी प्रिंस को और बताती है कि वो उसका काम करके आ गई है। बट वो एक चीज़ कहती है, वो कहती है कि बहुत अजीब नहीं है, बाहर बहुत ठंडी है, पर मुझे इतने दूर से फ्लाई करके आने के बाद भी मुझे ठंडी नहीं लग रही है, मुझे एक गर्मी लग रही है। दिस इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, सेड द प्रिंस, एंड लिटिल स्वेलो बिगिन टू थिंक एंड देन फॉल asleep. तो वो बोलते हैं कि और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने बहुत अच्छा एक काम किया है, अच्छा काम करने वालों के साथ अच्छा ही होता है, इसलिए वो वहाँ पे उस रात सो जाती है। फिर अगले दिन फिर से सुबह होती है, वो पूरी जगह में घूम के आती है एंड आज वो डिसाइड करती है कि अब तो बस आज का ही दिन है, रात में मैं फिर से इजिप्ट के लिए निकल लूँगी, और इस तरीके से वो जाने की प्रिपरेशन करती है। एंड वो सारे वहाँ पे जो चर्च हैं, वहाँ पे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके ऊपर ऊपर जाके घूमती है, रिवर्स उन सब पे घूमने के बाद वो आके उसे बोलती है, हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट? ठीक, राइट, आई एम जस्ट स्टार्टिंग। तो बोलती है ओके, मैं तो अब जा रही हूँ। तो फिर से हैप्पी प्रिंस उसको प्लीज़ करते हैं, वो कहते हैं कि स्वेलो स्वेलो एक रात के लिए और रुक जाओ प्लीज़। तो बोलती है नहीं, मुझे इजिप्ट जाना है, मैं नहीं रुकूंगी। तो फिर से वो उसे बताता है कि यहाँ देखो, वहाँ दूर एक पर्सन है जो कि बैठा हुआ है, वो अपने डेस्क पे पूरी तरीके से लीन है। वो उसके by his side there is a bunch of withered violets. His hair is brown and crisp and his lips are red as a pomegranate and he has large and dreamy eyes. He's trying to finish a play for the director. तो बताता है कि कितना सैड एंड कितना वीक है वो पर्सन। ठीक है, वो एक प्ले लिख रहा है, वो प्ले लिखने का ट्राई कर रहा है एंड सून वो जैसे ही वो प्ले लिख लेगा, क्योंकि कल उसको अपने जो डायरेक्टर है उसको प्ले सबमिट करना है, तो और पर वो लिख नहीं पा रहा है क्योंकि बाहर बहुत ठंडी है, उसने कुछ खाया भी नहीं है, तो बॉडी की वार्मथ भी नहीं है और ऐसा लग रहा है वो फेंट हो जाएगा। सो बोलती है ठीक है, मैं एक रात और रुकने के लिए रेडी हूँ, लाओ रूबी। तो बोलते हैं नहीं, मेरे स्वॉर्ड में तो सिर्फ एक ही रूबी था, मेरे पास रूबी नहीं है। तो बोलती है तो प्रिंस से बोलता है तो अब एक काम करो, मेरे आइज़ वो निकालो, लेफ़्ट वाले आइज़ में एक जो सफ़ायर्स हैं उसे निकालो। सफ़ायर्स भी बहुत प्रीशियस स्टोन होते हैं, इसके भी अच्छे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, एंड उससे उसकी हेल्प हो जाएगी, वो इसको बेच देगा और उसको अपने लिए खाना फायरवुड सब मिल जाएगा, जिससे उसका प्ले भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जो स्वेलो होती है बोलती है पर मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारी एक आँख चली जाएगी। फिर वो बोलता है बस तुम मेरा ऑर्डर फॉलो करो, और वो एक आई प्लग कर लेती है एंड उड़ते उड़ते उस गैरेट मैन के पास जाती है एंड उसके रूफ में एक होल होता है, वहाँ से अंदर जाके उसके रूम में घूमने लगती है एंड देखती है कि वो बहुत परेशान है वहाँ पे, एंड वहाँ पे सफ़ायर रख के चली आती हैं।
I am beginning to be appreciated, he cried. This is from some great admirer. Now I can finish my play. तो फिर जब वो सर उठा के देखता है, बोलता है अच्छा, उसके पास वो सफ़ाज़ देख के बहुत खुश हो जाता है और वो बोलता है कि चलो अच्छा है, किसी ने तो मेरी हेल्प कर दी, अब मैं अपना प्ले भी अच्छे से ख़त्म कर लूँगा और मैं अपने लिए फ़ुड भी परचेज़ कर सकता हूँ। और ये सारी चीज़ों के साथ वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करता है। फिर से नेक्स्ट डे पूरा इजिप्ट घूमने के, मतलब पूरा एरिया घूमने के बाद जो स्वेलो होती है वो डिसाइड कर चुकी होती है कि वो आज तो पक्का चली जाएगी। एंड वो फाइनली रात को जैसे ही चांद निकल आता है, हैप्पी प्रिंस को ग्रीट करने आती है बाय, और बोलती है मैं तुम्हें बाय बोलने आई हूँ, मैं जा रही हूँ। तो हैप्पी प्रिंस बोलता है स्वेलो स्वेलो फिर से एक दिन रुक जाओ, बिकॉज एक छोटा सा काम है वो कर दो। तो बोलती है नहीं, विंटर बढ़ती जा रही है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, मुझे जाना पड़ेगा और मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। एंड क्रोकोडाइल्स लाई इन मड एंड लुक लेजली अबाउट देम। तो बोलती है कि अब सनवॉर्म ख़त्म हो रही है धीरे धीरे, तो मुझे वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। In the square below the happy prince there stands a little magic girl. तो फिर हैप्पी प्रिंस फिर से बताता है कि वहाँ देखो दूर एक छोटी सी बच्ची है जो कि माचिस की डिबिया बेच रही है। उसके सारे मैच स्टिक्स जो हैं वो गटर में गिर गए हैं और ख़राब हो चुके हैं। अब वो अगर इन्हें बेच के पैसे नहीं लेके जाएगी तो उसके फादर उसे बहुत मारेंगे, इसलिए ये रो रही है। इसके पास ना शूज़ हैं ना कपड़े हैं, ना सॉक्स हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, और एक खाली पैर इस सर्दी में घूम रही है। एक काम करो, मेरी एक और आई निकाल लो और उसे जाके दे दो, जिससे वो अपने फादर को पैसे दे देगी और उसके फादर उससे डांटेंगे नहीं। बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, यू शुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन। वो बोलती है नहीं, मैं नहीं निकालूंगी क्योंकि तुम अंधे हो जाओगे। तो बोलता है जैसा मैं तुम्हें बोल रहा हूँ वैसा करो, ये मेरा कमांड है, ऑर्डर है, जस्ट गो एंड फॉलो इट। तो वो जाती है एंड उस लड़की को दे देती है वो, एंड वो लड़की बहुत खुश हो जाती है एंड स्लिप द ज्वेल इनटू हर पाम और हर हैंड, व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास। एंड वो हंसती खेलती भागते भागते अपने फादर के पास चली जाती है। सो वो बोलती है कि अब स्वेलो को भी दया आ गई होती है, उसे ऐसा लगता है कि अब तो हैप्पी प्रिंस देख ही नहीं सकता, अब क्या होगा। तो वो लिटिल स्वेलो बोलती है कि अब आज से मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, मैं कभी नहीं जाऊँगी इजिप्ट और मैं तुम्हारे साथ ही तुम्हारी हेल्प करूँगी। वो बोलता है नहीं नहीं स्वेलो तुम चली जाओ, पर वो बोलती है नहीं मैं नहीं जाऊँगी, और वो रात वहीं पे सो जाती है। और नेक्स्ट डे वो उसके शोल्डर पे बैठ के उसे पूरे सिटी का काम बताती है कि सिटी में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कौन सी अच्छी चीज़ें हैं वो बताती है। पर जो प्रिंस होता है वो उसे बोलता है कि डियर स्वेलो मुझे अच्छी चीज़ें मत बताओ, मुझे लोगों की गरीबी तकलीफ़ें वो सब बताओ, मुझे उनके दुख को दूर करना है। एंड इसलिए वो उड़ उड़ के आती है, वो उड़ के हर जगह की चीज़ें देख के आती है और वो बताती है कि सच में जो रिच लोग हैं वो अपने घरों में खुशियाँ मना रहे हैं और जो बेगर्स हैं उनके पास खाने को खाना भी नहीं है। सिटी बहुत ही ज़्यादा मिसमैच है। एंड फिर वो एक बताती है कि एक ब्रिज के नीचे दो बॉयज़ जो हैं वो एक दूसरे को हक करके बैठे हुए हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखे हैं और उन्हें सर्दी लग रही है, तो वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ छुपे हुए हैं। बट वहाँ का वॉचमैन आता है और वो उनको वहाँ से भगा देता है और इस सर्दी में अब वो बाहर हैं। सो वो बोलते हैं कि मैंने सुना है, हैप्पी प्रिंस बोलते हैं क्या मेरे पास कोई प्रीशियस स्टोन तो नहीं है, पर मैंने सुना है कि जो गोल्ड होता है वो भी लोगों को खुश कर देता है, तो गोल्ड की कुछ तो वैल्यू ज़रूर होगी। एक काम करो, मेरी पूरी बॉडी पे फाइन गोल्ड लगे हैं, इसे प्लग कर लो और सारे लोगों को दे दो जो बेगर्स हैं, जो गरीब हैं, जिनकी कुछ दिक्कतें इससे सॉल्व हो सकती हैं। एंड वो ये काम करती है। देन द स्नो केम एंड द स्नो आफ्टर केम द फ्रॉस्ट। तो एक एक करके अब सर्दी और बढ़ती जा रही होती है, अब स्नो आ गया होता है, फ्रॉस्ट एंड मिस्ट सब कुछ चल रहा होता है, हर जगह बर्फ़ से ढक गई होती है। एंड अब सिचुएशन और वर्स्ट हो गई होती है। जो पुअर स्वेलो थी अब वो उसको बहुत ठंडी लग रही होती है, अब उसके लिए ऐसी सर्कमस्टेंसेस में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। वो अपने पंख फड़फड़ाती है ताकि उसको गर्मी लगे, बट अब ऐसी सिचुएशन हो गई होती है कि वो और रिकवर नहीं कर सकती है। तो वो उसे एक चीज़ बोलती है हैप्पी प्रिंस को, कि उसके शोल्डर पे आके बोलती है मैं जा रही हूँ, मैं तुम्हें गुड बाय बोलने आई हूँ, क्या मैं तुम्हारे हाथों को किस कर सकती हूँ। सो प्रिंस बोलते हैं कि मैं बहुत खुश हुआ जान के कि तुमने फाइनली इजिप्ट जाने का फ़ैसला बना लिया, अच्छा हुआ तुम जा रही हो, तुम काफ़ी दिन यहाँ पे रह गई हो एंड तुम मेरे हाथों को नहीं, तुम मेरे लिप्स को किस कर सकती हो क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही प्यार करती हूँ। तो स्वेलो उसको बताती है मैं इजिप्ट नहीं जा रही हूँ, मैं हाउस ऑफ डेथ में जा रही हूँ जहाँ मैं हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊँगी। ठीक है, एंड वहाँ पे हैप्पी प्रिंस को उसके लिप्स पे किस करके उसके फीट में गिर जाती है और मर जाती है। जैसे ही वो नीचे गिरती है एक क्रैकलिंग सा साउंड आता है, जैसे कुछ स्टैचू के अंदर कुछ टूट गया हो। एंड वो था स्टैचू का लेडन हार्ट, लेड का बना हुआ जो हार्ट था वो दो टुकड़ों में बट गया।
एंड वहीं पे गिर गया। अर्ली मॉर्निंग जब वहाँ का मेयर राउंड पे होते हैं तो वो सारी चीज़ें जो वेस्ट है उस सिटी में देख रहे होते हैं, तो उन्हें वो हैप्पी प्रिंस का डल एंड शैबी सा जो मॉन्यूमेंट है वो भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो ऐसा बोलते हैं कि ये हैप्पी प्रिंस अब हैप्पी है, वी शुड रिमूव इट बिकॉज ये एक गार्बेज जैसा लग रहा है। सो लिटिल बेटर देन अ बेगर सेट द टाउन। बोलते हैं ऑब्वियसली ये उतना अच्छा नहीं लगा, और ऊपर से इसके पैरों के नीचे एक बर्ड भी मरी हुई है, तो ऐसी चीज़ें हमें यहाँ पे नहीं रखनी चाहिए और हमें इसको रिमूव कर देना चाहिए। एंड दिस इज़ हाउ दे डिसाइडेड टू रिमूव इट। एंड द टाउन का जो क्लर्क होता है वो सजेशंस देता है और उनको वहाँ से हटाने, एंड वो वहाँ पे लिखता भी एक चीज़ कि हाँ यहाँ पे बर्ड्स का मरना अलाउड नहीं होना चाहिए, ठीक है, एंड हमें ऐसी चीज़ें नोट्स करके यहाँ पे लिख देनी होंगी। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और वहाँ से खींचते हैं, उसे गिरा देते हैं, एंड वो हमेशा के लिए वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस, और उन्होंने डिसाइड करते हैं कि उसको मेल्ट करके वो कुछ ब्यूटीफुल सा वहाँ पे बनाएंगे, एंड वो उसको मेल्ट करते हैं। बट एक चीज़ देखते हैं कि जो वर्कर होता है कि सब कुछ मेल्ट हो जाता है, बस उसका जो हार्ट होता है वो मेल्ट नहीं हो रहा होता है, तो उसने एक कचरे के वहाँ पे एक डेड स्वेलो को भी फेंक दिया और उसके हार्ट को भी फेंक दिया। एंड हियर द स्टोरी एंडेड। बट जब भगवान बोलते हैं अपनी एंजल्स को कि जाओ धरती पे से दो सबसे खूबसूरत चीज़ें लेके आओ, तो वो जाके एक डेड बर्ड लेके आती है और वो हैप्पी प्रिंस का एक हार्ट लेके आती है। सो गॉड बोलते हैं कि तुमने सही चुना, मेरे यहाँ पे मेरे पैराडाइज में रहने के लिए अगर कोई सबसे ज़्यादा लायक है तो वो ये बर्ड है एंड हैप्पी प्रिंस है। सो इसे ऑस्कर वाइल्ड लाइफ ने लिखा है, एंड यहाँ पे आपकी एक छोटी सी स्टोरी ख़त्म होती है। सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा, बिकॉज इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल स्टोरी, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं समझ में आए। ओके, so and here 6 question answers you guys are having, so please learn and by heart it and make it down in your notebook. Don't copy paste the answers from anywhere, neither online nor from your reference books, right? Try to answer it yourself, इसलिए chapters इतने डिटेल में समझाए जाते हैं ताकि आप own words में चीज़ों को अपने words में present कर पाएँ, ठीक है? So submit it as soon as possible, and if still you guys are having any doubt, please feel free to ask your doubts. Okay, till then, thank you and have a nice day.